اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. So we already discussing about internal medicine cardiovascular system. ٹھیک ہے جی. آج ہم پڑھیں گے ڈسلیپیڈیمیا. ہیڈنگ دے دے what is meant by dyslipidemia. Actually dyslipidemia sometimes referred as hyperlipidemia. اس کا مطلب ہے کہ ڈیرینج لیول آف لپڈ ان دا بلڈ. اگر بلڈ کے اندر لپڈ لیول ڈیرینج ہو جائے تو اس کنڈیشن کو ہم ڈسلیپیڈیمیا کہتے ہیں. یہاں پہ لکھیں ڈیرینج لیول آف lipids in blood known as dyslipidemia. ٹھیک ہے. ڈسلیپیڈیمیا کے اندر آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں اس کے جو کمپوننٹس ہیں کہ ہم کون سے کنڈیشن کو ڈسلیپیڈیمیا کا نام دیں گے. ٹھیک ہے. مطلب وہ لوگ جس میں ٹوٹل سیرم کولیسٹرول، ہم ٹوٹل سیرم کولیسٹرول چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈسلیپیڈیمیا کے مریض میں یاد رکھنا ہے ہم ایل ڈی ایل چیک کرتے ہیں. کیا چیک کرتے ہیں؟ ایل ڈی ایل. ایل ڈی ایل اسٹینڈ فار لو ڈینسٹی لائپوپروٹین. اس کو ہم بیڈ کولیسٹرول بھی کہتے ہیں کیونکہ لیور سے فیٹس لے کے ویسل کے اندر ڈپوزٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو دس ایل ڈی ایل پروموٹ ایتھیروسکلیروسس. یہ بلڈ سپلائی ہارٹ کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس وجہ سے اس کو ہم بیڈ کولیسٹرول کا نام دیتے ہیں. دیٹ از نون ایز بیڈ کولیسٹرول. جن لوگوں میں ایل ڈی ایل کا لیول زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں کو کارڈیو واسکولر ڈیمیج کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ڈسلیپیڈیمیا کے اندر ایچ ڈی ایل چیک کرتے ہیں، اسٹینڈ فار ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین. اور یہ جو ایچ ڈی ایل ہے اس کا کام کولیسٹرول کو ویسل سے لے کے لیور کو دینا تاکہ بلڈ ویسل بلاک نہ ہو جائے. اور اگر بلڈ ویسل بلاک نہیں ہوگا تو بلڈ سپلائی ہارٹ کو پراپر ملے گی. So that is doing the good job. Therefore it is called of good cholesterol. اس کو کیا کہتے ہیں؟ گڈ کولیسٹرول. تو یہ بھی اپنے اپنے MCQs ہیں بیسک. ایل ڈی ایل بیڈ کولیسٹرول ہوتا ہے، ایچ ڈی ایل گڈ کولیسٹرول ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ فورتھ نمبر لے کے ٹرائی گلیسرائڈ جس کو ہم ٹی جی کہتے ہیں. That is known as triglyceride. Simply that is called TG. اب اس میں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ ڈسلیپیڈیمیا ہم کن کن کنڈیشن کو اس کو کہہ سکتے ہیں. جن لوگوں کا سیرم کولیسٹرول تقریباً مور دین 200 mg پر ڈی ایل ہو، ملی گرام پر ڈی ایل. مطلب اگر کولیسٹرول کا لیول کس سے زیادہ ہو جائے 200 mg پر ڈی ایل، دیٹ ول بی ریفرڈ ایز ہائپر کولیسٹریلیمیا. وہ پھر کیا ہوگی؟ ہائپر کولیسٹریلیمیا. ایل ڈی ایل جو ہے ایل ڈی ایل اس کا لیول اگر 130 کراس کرے 130 mg پر ڈی ایل. ٹھیک ہے. اور یہ جو ٹی جی ہے مطلب ٹرائی گلیسرائڈ اس کا لیول کس چیز سے کراس ہو جائے 150 mg پر ڈی ایل. اور یہ جو ایچ ڈی ایل ہے ایچ ڈی ایل یہ لیس دین 40 آ جائے. کس چیز سے آ جائے؟ لیس دین 40. So these are considered as dyslipidemia levels. یہ ڈسلیپیڈیمیا ہے. اب ادھر تھوڑا سا آپ لوگوں نے غور سے دیکھنا ہے ایچ ڈی ایل گڈ ہے کہ بیڈ ہے؟ گڈ. تو باڈی میں اس کا لیول جتنا زیادہ ہوگا اتنا اچھی بات ہے کیونکہ دیٹ از گڈ کولیسٹرول. لیکن ڈسلیپیڈیمیا کے لوگوں میں اس کا لیول لیس دین 40 ہوتا ہے. لیکن ہیلدی پرسن میں اٹ شوڈ بی مور بیکاز اٹ از اے گڈ کولیسٹرول. تو ہیلدی پرسن میں یہ 50 ہوتا ہے، 70 ہوتا ہے، 60 ہوتا ہے. اگر ہم کسی بندے کو ہیلدی دیکھنا چاہتے ہیں تو وی نیڈ مور ایچ ڈی ایل بیکاز اٹ از گڈ کولیسٹرول. تو ہم سب میں ہیلدی لوگوں میں اس کا لیول 40 پلس ہوتا ہے، لیکن ڈسلیپیڈیمیا کے پیشنٹ میں اس کا لیول لیس دین 40 ہوتا ہے. اب یہ جو ایل ڈی ایل ہے یہ بیڈ ہے کہ گڈ ہے؟ بیڈ ہے. تو ہیلدی بندے میں اس کا لیول کم ہونا چاہیے کیونکہ یہ بیڈ کولیسٹرول ہے. لیکن ڈسلیپیڈیمیا کے مریض میں اس کا لیول 130 سے زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یاد رکھے اگر سیرم کولیسٹرول 200 کراس کرے، ایل ڈی ایل 130 سے زیادہ آ جائے اور ایچ ڈی ایل کس سے کم آ جائے 40 اور ٹی جی 150 سے زیادہ آ جائے، ان ویلیوز کو ہم کہتے ہیں ڈسلیپیڈیمیاز. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈسلیپیڈیمیاز. اب یہ ویلیوز کیوں ڈسٹرب ہوتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بولے کہ رسک فیکٹر. مطلب وہ کون کون سی کام ہے یا رسک فیکٹر ہے
جس کی وجہ سے डिसलिपिडीमिया के चांसेस ज़्यादा होती हैं। بعض लोगों में लिपिड की जो एबनॉर्मल लेवल होती है वो जेनेटिक्स की वजह से होती है, तो लेके जेनेटिक फैक्टर, क्योंकि genetically some diseases are there which can cause abnormal lipid level like genetic dyslipidemia, genetic hypercholesterolemia। तो इसका मतलब है कि some genes are there which disturb these value, तो genetic factor। तो जो लोग obese होते हैं, फैटी होते हैं और उसका लिपिड लेवल डिरेंज होता है, तो हमें फैमिली हिस्ट्री पूछनी चाहिए कि खानदान में पहले किसी को और यह मसला है कि नहीं है, ठीक है। नंबर 2 डायबिटीज मेलाइटस, किसके अंदर डायबिटीज मेलाइटस। नंबर 3 स्मोकिंग, स्मोकिंग आल्सो लीड्स टू डिरेंज लिपिड लेवल, इससे भी लिपिड लेवल जो है वो डिरेंज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप लोग को मैंने फॉर एग्जांपल और एक लिखे ओबेसिटी, ओबेसिटी के अंदर भी लिपिड लेवल डिरेंज होते हैं कि नहीं, तो ओबेसिटी इज आल्सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। ओबीज लोगों के अंदर जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स है, वो 30 से ज़्यादा होता है, और ये क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम के अंदर कि बीएमआई को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, वेट इन केजी डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। याद रखें ये एनआरई 1 के अंदर, एमडीएमएस के अंदर, ये सब के लिए एमसीक्यूज हैं। अगर आप किसी बंदे का बीएमआई चेक करना चाहे, बॉडी मास इंडेक्स, इट शुड बी इक्वल टू वेट इन केजी डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। याद रखें अगर किसी का वेट 70 केजी है और उसका हाइट 1.2 मीटर है, तो हम 1.2 का क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, और 70 पे डिवाइड करें, जो वैल्यू आएगी उस पर्टिकुलर बंदे की क्या होगी, बीएमआई। तो बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मली 17 से लेकर 25 तक होती है। तो अगर कोई बंदा पूछे कि बीएमआई का नॉर्मल वैल्यू 70 से लेकर कहाँ तक होती है, 25, अगर किसी बंदे का बीएमआई 25 और 30 के बीच में आ जाए तो उसको हम ओवरवेट कहते हैं, लेकिन अगर ये वैल्यू 30 को क्रॉस करे तो उसको हम क्या कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं, ठीक है जी। तो ओबेसिटी के अंदर जो बॉडी मास इंडेक्स है दैट शुड बी मोर देन 30, किससे ज़्यादा होना चाहिए, 30 से ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप लोगों ने याद रखना है, जो हाइपर लिपिडीमिया का पेशेंट होता है उसका जो नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी मतलब डिरेंज लेवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखें, हमने रीनल सिस्टम के अंदर एक डिजीज़ पढ़ी थी, उस सिस्टम के अंदर एक डिजीज़ है किडनी के अंदर, जिसमें किडनी डैमेज होती है और एल्ब्यूमिन लीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। क्या चीज़, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। एक है नेफ्राइटिक सिंड्रोम और एक होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर मैसिव प्रोटीन यूरिया होता है, एल्ब्यूमिन लीक होता है, तो फिर उसमें हाइपरलिपिडीमिया होता है। तो यहाँ पे लिखे अनदर काज ऑफ हाइपरलिपिडीमिया दैट इज विच सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक सिंड्रोम में मेन फर्क प्रोटीन यूरिया का होता है, इसमें मोर देन 3 ग्राम प्रोटीन पर डे जाता है और नेफ्राइटिक के अंदर लेस देन 3 ग्राम जाता है, ठीक है जी। तो दीज आर द रिस्क फैक्टर विच कैन लीड्स टू डिसलिपिडीमिया, ठीक है। अब लेके क्लिनिकल फीचर, एक्चुअली क्लिनिकल फीचर में याद रखें कि मेजॉरिटी आर एसिम्टोमेटिक, ठीक है, एसिम्टोमेटिक, बट एक्सेस लिपिड्स डिपॉजिट इन डिफरेंट टिश्यू। कहते जिन लोगों में लिपिड का लेवल बढ़ जाता है तो इनिशियली उन पे कोई सिम्टम नहीं होते, लेकिन बाद में जाकर जो लिपिड्स है वो एक्सेस टिश्यूज पे जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 1 इसके अंदर आता है ज़िंथोमास। एग्जाम के अंदर आ जाए कि ज़िंथोमास का मतलब क्या है, अगर एक्सेस लिपिड की डिपोजिशन टेंडन पे हो जाए, किस जगह पे, टेंडन, excess lipid deposition on the tendinous structure they are called of xanthomas, इसको हम xanthomas कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि लिपिड ऑन टेंडन। देखिए दो बात याद रखें, अगर हम देखें एक लिगामेंट होता है और एक टेंडन होता है, क्लियर है। अगर हम मसल्स को बोन्स के साथ मिलाए तो उसको टेंडन कहते हैं, लेकिन अगर हम बोन्स को बोन्स के साथ मिलाए तो उसको लिगामेंट कहते हैं। तो टेंडन और लिगामेंट में क्या फर्क है, ऐसा स्ट्रक्चर जो मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करे दैट इज कॉल्ड ऑफ टेंडन, और अगर बोन टू बोन कनेक्शन में लाए तो उसको हम लिगामेंट्स कहते हैं। तो अगर टेंडन्स के ऊपर एक्सेस लिपिड की डिपोजिशन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ज़िंथोमास कहते हैं। एक होता है ज़ेंथेलेस्मा, ज़ेंथेलेस्मा,
ठीक है, ये भी एग्जाम के अंदर आता है। दिस इज द एक्सिस लिपिड डिपोजिशन ऑन द आईलिड्स। अगर इस आंख के बाहर आईलिड पे एक्सिस लिपिड की डिपोजिशन हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, जेंटेलास्मा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखे लिपिड ऑन आईलिड, लिपिड ऑन आईलिड, दैट इज नोन एज जेंटेलास्मा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वन, कभी कभार जो एक्सिस लिपिड डिपोजिशन है वो कहाँ पे होती है, रेटिना के ऊपर। कहाँ पे, रेटिना के ऊपर। उसको हम कहते हैं लाइपीमिया रेटिनेलस, लाइपीमिया रेटिनेलस, लाइपीमिया रेटिनेलस। रेटिनेलस इज द वर्ड यूज फॉर रेटिना। तो रेटिनल वेसल्स में रेटिना के ऊपर लिपिड का लेवल आना ज्यादा, तो उसको हम लाइपीमिया रेटिनेलस कहते हैं। तो इसका मतलब यह है, बहुत सारे मरीज आते हैं क्लिनिक में चेकअप करने के लिए। तो जब हम चेकअप करते हैं तो फिजिकल एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द पेशेंट व्हेन वी डू सम चेकअप इन द क्लिनिक। तो हम पेशेंट को बताते हैं कि अपनी आंखें बंद करें। जब वो आंखें बंद करता है तो हमें यहाँ पे जनाब एक्सेस लिपिड की डिपोजिशन नजर आना शुरू हो जाती है, और वो बंदा अगर पीछे से स्मोकर भी है या उसकी वेट भी ज्यादा है तो हमें ऐसा अंदाजा होता है कि इस पेशेंट को क्या हो सकता है, डिसलिपिडीमिया। तो यू शुड ऑर्डर अ टेस्ट नोन एज LPT, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। हम फिर क्या करते हैं, लिपिड प्रोफाइल। तो जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है उसमें हम कोलेस्ट्रोल चेक करेंगे, LDL, HDL एंड TG चेक करेंगे। अगर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में इन वैल्यूज को देखकर इससे ज्यादा आते हैं तो देन वी विल कंसिडर द पेशेंट हैज ऑफ डिसलिपिडीमिया। अब अगर एक बंदा है उसका लिपिड लेवल डिरेंज है, बॉडी के अंदर उसका लिपिड बहुत ज्यादा है, तो हम फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इस बंदे को अगर हम ट्रीट ना करें तो उसके आने वाले टाइम में स्ट्रोक के चांस हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एक्सेस लिपिड जो है वो ब्रेन के वेसल में क्लॉट बना सकते हैं कि नहीं, एक्सेस लिपिड कोरोनरी आर्टरी को बंद कर सकते हैं कि नहीं, एक्सेस लिपिड रीनल आर्टरी को बंद कर सकते हैं। तो अगर हम हाइपर लिपिडीमिया के मरीज को ट्रीट ना करें, इट मे लीड्स टू स्ट्रोक और इट मे लीड्स टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, द मोस्ट कॉमन रिस्क फॉर डिसलिपिडीमिया इन द फ्यूचर इज हार्ट अटैक। वो क्या कराता है, हार्ट अटैक। तो हम एज अ डॉक्टर क्या करेंगे, पेशेंट को बताएंगे कि अपना वेट क्या करे, लूज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और वो डाइट अवॉइड करें जिसमें फैट कंटेनिंग कंटेंट ज़्यादा होते हैं। और इसके साथ साथ हम ड्रग्स देंगे जिससे हम लिपिड की लेवल को काफ़ी हद तक कम करेंगे। तो आप लोग हेडिंग दे दे लिपिड लोअरिंग एजेंट। अब एग्जाम के अंदर MCQs जो आएंगे वो ड्रग से आते हैं कि भाई कौन सा ड्रग है जो लिपिड को कम कर सकता है और कौन सा ड्रग क्या करता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आना चाहिए, ड्रग्स के नाम आने चाहिए और उसके रेलेवेंट साइड इफेक्ट्स आने चाहिए। तो अब लिखे लिपिड लोअरिंग एजेंट, वो ड्रग जिससे हम लिपिड की लेवल को कम कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लिपिड लोअरिंग एजेंट्स कहते हैं। अब वो हम डिस्कस करेंगे कि लिपिड लोअरिंग एजेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। ठीक है जी, इससे एक टेबल ड्रा करेंगे और टेबल के जरिए हम डिस्कस करेंगे कि लिपिड लोअरिंग एजेंट हमारे पास कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे